Hey, hello everyone. So welcome back. So let's start with the today's session. So let me remind you last वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था. So basically in last video we looked at the four subspecies, right? हम लोगों ने चार सब स्पेसेस के बारे में बात किया था, राइट? सो जो पहला सब स्पेस हम लोग जो कि वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट स्पेस, दैट इज़ द कॉलम स्पेस. और दूसरा जो सब स्पेस है वो आपका नल स्पेस है, राइट? एंड द थर्ड स्पेस दैट वी सॉ इज़ द रो स्पेस, राइट? और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो मैट्रिक्स के रो होते हैं उनको कैसे हम एज अ कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज देख सकते हैं, राइट? और कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है? कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट द रो ऑफ मैट्रिक्स ए, right? And the linear combination of the rows will give you the row space, right? So space is spanned by the linear combination of rows will give you the row space, right? And we looked another way, right, in terms of the row combination, right? जैसे कि हम लोग यहाँ पे ax is equals to 0 देख रहे हैं. So what does ax tells? So first of all, what does it mean by a times x? Matrix times this vector x. It means that the linear combination of the columns of a, or this x tells you that how to take the linear combination of the columns of this matrix a. Now coming to this equation, this one. So what does it mean? So we are again looking at the null space, right? But in different way. So you can see what now we are looking at those combination for which the rows of matrix A is 0, right? So here if we have to describe in words, how we can describe is that this is a linear combination of the rows of the matrix A, right? And if this linear combination is 0, that means whatever the vector और whatever the y, जिस भी y के लिए ये combination 0 मिलेगा, we will call that all those row vector will be in the null space. And why we have taken this left? Because if you look at this equation, this will describe the null space, and since it is in the left side of this matrix A, that is why we are calling it as a left null space, right? And also we talked about that where कहाँ से ये सारी जो है स्पेसेस बिलोंग करते हैं, फ्रॉम विच स्पेस दे बिलोंग्स टू, राइट? जैसे कि रो स्पेस जो है वो कौन से वेक्टर स्पेस में है? r to the power n. तो रो स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ r to the power n. सिमिलरली वी लुक फॉर द कॉलम स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस की इन ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट? और ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्क्राइब किया था. नाउ कमिंग टू today's session, what we are going to do. So basically we are going to look at the dimension of four fundamental subspaces, right? So whatever we have gone through, so all we will look at the dimension of all these subspaces. कैसे हम लोग उसके dimensions को find कर सकते हैं, right? So obviously okay, so let's start with that, and after that at the end I will take an example where I will find the basis and then I will find the dimension of all these four subspaces. Okay, let's start with the today's session. So we are going to talk about dimension of the four subspaces, right? और सबसे पहली बात तो मुझे एक आप मैट्रिक्स ले लेने दो एज फॉर द रेफरेंस, एंड लेट्स से कि इस मैट्रिक्स के पास ये जो मैट्रिक्स है वो आपका m/n का है, मतलब इसके पास m रोज़ है और n कॉलम है. और एज्यूम करो कि इसके पास कुछ हर एक रो और हर एक कॉलम में पिवट है, और मान लो कि r पिवट है, ठीक है? ये टोटल जो है इसके पास r पिवट है, ठीक है? ऐसा एज्यूम करो आप. तो मुझे क्या करना है?
डायमेंशन के बारे में बात करना, राइट। सो डायमेंशन के बारे में बात करने से पहले मुझे ये पता रहना चाहिए कि इसके बेसिस सेट में कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, राइट। अगर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉलम स्पेस का, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस। सो वी कैन डिनोट द डायमेंशन लाइक दिस, DIM, डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट। सो बहुत ईजी है फाइंड करना, आपको याद भी नहीं रखना है, मतलब ये सब चीज़ें याद रखने की है ही नहीं, ये सब चीज़ें आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। सो अगर आपको चीज़ें पता है तो, राइट, आपको पता है कि कॉलम स्पेस क्या होता है, उसके बेसिस सेट में क्या आएगा, देन यू हैव द डायमेंशन, राइट। सो इफ़ कॉलम स्पेस है, राइट, तो कॉलम स्पेस के बेसिस सेट में कौन से वेक्टर्स आएंगे। सबसे पहली बात तो कॉलम स्पेस विल बी स्पैन्ड बाय ऑल दोज कॉलम्स, राइट। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेक्टर भी हो सकते हैं। इफ़ आई आस्क यू अबाउट ओनली द कॉलम वेक्टर्स, गिव मी द वेक्टर्स दैट आर स्पैनिंग द कॉलम स्पेस। So what you will do, you will pick all these column vector and you will give it to me, and you will say take this vector and take the linear combination, they are going to span the column space, right. But in dimension, in a basis set, the first thing is that you will not have the any independent vector, sorry, any dependent vector. You will not have the any dependent vector, right. So in the basis set you will not have the, लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बेसिस सेट में, देखो बेसिस सेट जो कंटेन करेगा ना, वो ना तो कम हो सकता है ना तो ज़्यादा हो सकता है। और ये इन व्हाट सेंस आई एम सेइंग कि ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। बेसिस सेट विल हैव द इनफ वेक्टर टू स्पैन द स्पेस, राइट। इट विल नॉट हैव मोर देन डैट, और उससे कम भी नहीं हो सकता। कम होगा तो वो जितना स्पेस स्पैन करना चाहिए वो स्पेस नहीं स्पैन कर पाएगा, और ज़्यादा होगा तो डैट मीन्स कि आई हैव द इंडिपेंडेंट वेक्टर इन द बेसिस सेट दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एज अ बेसिस, राइट। सो बट आप ऑब्जर्व करो, ये पिवट जो है वो क्या बताता है। अगर किसी भी कॉलम में पिवट है या किसी भी रो में पिवट है, सो दैट मीन्स कि ये अगर ये सारे पिवट है, दैट मीन्स कि अगर इन सारे वेक्टर्स को मैं चुनूँ, then they are going to independent of each other, right. if I have any free column, अगर मेरे पास कोई फ्री कॉलम है तो ये फ्री कॉलम में डिपेंड ऑन दीज पिवट कॉलम्स, राइट। बट अगर मैं सिर्फ पिवट कॉलम को चुनूँ, राइट, देन और यू कैन से द पिवट कॉलम को और पिवट कॉलम को ही अगर मैं सेलेक्ट करूँ, देन दे आर गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू span the column space, right. So in the basis set you will have all those pivot column vector, right, and all those pivot column vectors are independent and they are going to span the column space, right. So what will be the dimension of this column space? The dimension of the column space will depend on the number of pivots, or I can say will depend on the rank, because rank of this matrix A is nothing but it is the number of pivots, and that is equals to R for this particular example, right. So what will be the dimension of this column space of A? The dimension of column space of A will be R, and it is nothing just a rank of this matrix A. So if you know the rank of this matrix A, you know the dimension of the column space of A, right. Now coming to the second subspace, the second subspace is, let's talk about the row space. So what will be the dimension of the row space of A, and this is how we denote the row space of A. और क्यों इसको A column space of A ट्रांसपोज बोलते हैं, that I have described in the last video, right. So again it will be same as the number of pivot, or you can say the rank of the matrix. Why? Because अगर आप रो वेक्टर्स को देखो, so row vector also going to contain the pivot, right. So those having the pivot will be independent vector, right. So अगर रो स्पेस में मुझे
independent vectors चाहिए, और if I ask you that give me those independent vector that are describing the row space, or in other word in one line, if same thing, if I have to ask, I will say give me the basis for the row space, right? So you will say take all these row. So that is not going to work, right? Because that will work, that if you give me all those row without worrying about the dependency and independency, that anyhow going to span the complete row space. But no, I am not asking all those vector, I am asking only those vector which are independent and which are capable of describing the complete row space. In other words, what I am asking is the basis for the row space. And you know that pivot row, जिसमें जितने भी सारे पिवट रो होंगे वो सारे रो इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? So I can pick this row, second row, and this row, right? I can pick the r number of row and I can give it to you, and I will say that this is the basis for the row space, and it will span the complete row space. So what will be the dimension for the row space? It will be again the r number of pivot, or you can say it will be the same as the rank of this matrix A, right? So you see, both having the same dimension, both row space and the column space having the same dimension. So both have same dimension. What is different here? So ये अगर मैं पूछूं कि ये कॉलम स्पेस किस वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, बोथ आर गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट वेक्टर स्पेस. वाई? देखो, रो स्पेस किस वेक्टर से, किस स्पेस का सब स्पेस होता है? r टू द पावर n, एंड कॉलम स्पेस r टू द पावर m, राइट? बट दे आर इन डिफरेंट वेक्टर स्पेस, बट दे हैव द सेम डायमेंशन, राइट? Both have the same dimension but from different vector space. Now coming to this third subspaces, that is, if I ask you what will be the dimension of the null space of this matrix A. So null space of matrix A, what I am asking? So basically I am asking that Ax is equals to 0. So all those vectors for which this linear combination is 0, so all those, give me all those x, or in other words describe the null space of this matrix A, and after that give me those vector which is describing the null space, or in other words I am asking give me the basis for this null space, right? So if I, अगर मुझे डायमेंशन पूछना है, तो how many number in a basis, how many number of vector that will describe the complete null space, how many independent vector that will describe the complete null space, right? So सबसे पहली बात तो आप नल स्पेस जब फाइंड करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स, राइट? इफ यू हैव द फ्री कॉलम्स, देन इस जितने फ्री कॉलम्स होंगे, हम लोगों ने देखा है, राइट, कि कैसे हम लोग हर एक फ्री कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपका सॉल्यूशन होगा, राइट? स्पेशल सॉल्यूशन, दैट वी कॉल द स्पेशल सॉल्यूशन. अगर मेरे पास 2 फ्री कॉलम है, देन करस्पॉन्डिंग टू दीज 2 फ्री कॉलम्स, और फ्री कॉलम्स बोलते हैं किसको हैं? सो विच दैट हैव नो पिवट्स, विच कॉलम्स दैट हैव नो पिवट्स. तो अगर कॉलम के पास पिवट नहीं है, दैट मीन्स कि this column vector will be a free column vector, and corresponding to that variable will be the free variable, right? तो ओवरऑल पॉइंट क्या, ये सब सारी चीज़ें हम लोग ने देखा है. नल स्पेस जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तब हम लोग ने ये सारी चीज़ें देखा है. ओवरऑल यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट क्या बोलना है, कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फ्री कॉलम्स हैं, राइट? अगर आपके पास 2 फ्री कॉलम्स हैं, देन यू विल गेट द 2 स्पेशल सॉल्यूशन, राइट? एंड नल स्पेस विल बी डिस्क्राइब्ड बाय दोज
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू स्पेशल सॉल्यूशन। अगर आपके पास 3 फ्री कॉलम है देन you will have 3 special solution and the null space will be described by the linear combination of those 3 vectors, right, those 3 special solution. So basically point यहाँ पे ये है, और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि जो सारे स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं those are the independent vectors, those are the independent vector। तो जितने भी स्पेशल सॉल्यूशन होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे एंड दोज आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंप्लीट नल स्पेस। सो इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी number of independent vectors will be in a basis set, so that will depend on the number of free columns. So if you have a matrix that have the having the r pivot column and total number of column is n, then how many you will get the free column? So that will be n minus r. So total number of column minus the pivot column. So जो भी बच जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, n minus r, and that number of special solution you will get, right? And those special solution will be independent and those special solution will be in the set of the basis, right? And number of vectors in the basis set will give you the dimension, and that is n minus r. So for this you will have the total number of basis vector in, that is n minus r, so dimension would be n minus r, right? Now coming to this fourth subspace, what will be the dimension of the left null space, that is the null space of A transpose, right? So what will be the null space of this A transpose, right? So null space of this A transpose, or similarly we can write like this by taking the transpose. So सबसे पहली बात तो देखो कि इसको फाइंड कैसे करना। सबसे पहली बात आपको पता ये रहना चाहिए कि नल डायमेंशन फाइंड करना है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज का, राइट? सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि कौन से वेक्टर को लिया जाए। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, रो वेक्टर है, राइट? दिस वाई ट्रांसपोज इज द रो वेक्टर, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इट विल गिव यू अ 0 रोज, राइट? सो बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा रो को लिया जाए सच ए वे कि इस ए का रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन शुड प्रोड्यूस दिस 0 वेक्टर, राइट? सो अब याद करो, और ऐसा कितना नंबर ऑफ ऐसा वेक्टर होगा, राइट? एंड दैट ऑल दोज वेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट, और वो सारे जो है लेफ्ट नल स्पेस में फॉल करेगा, राइट? अब आप याद करो एक चीज़ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव द डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, राइट? एंड रिजल्ट आपको याद रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम की डायमेंशन क्या होगा, दैट वो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, जैसे कि ये कॉलम स्पेस है, राइट? एंड द नल स्पेस हैव द डायमेंशन n माइनस आर, ये रो स्पेस है एंड दैट विल हैव द डायमेंशन m माइनस आर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसको इसके डायमेंशन को बताने में, यू कैन डायरेक्टली टेल मी, बट व्हाट्स द मैथ बिहाइंड इट। और तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है और एलिमिनेशन का पूरा प्रोसेस याद है, तो इसका मतलब क्या होता है, E टाइम्स ए, दिस मैट्रिक्स E इज अ एलिमिनेशन मैट्रिक्स एंड दिस A इज मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, राइट? और ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या करता है, रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन को लेता है, राइट? और ये E देखो ना, E आपके किधर बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ना, A के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि E विल एक्ट ऑन द रोज ऑफ A, राइट? एंड इट विल प्रोड्यूस सम मैट्रिक्स, राइट? और बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन देख रहे हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस को देख रहे हैं, मैंने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बस लिख दिया है। और एट द एंड एलिमिनेशन आप जब करते हो देन यू विल हैव सम पिवट रो, एंड जो पिवट रो नहीं होगा वो रो कौन सा होगा, 0 रो होगा।
और इस मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे देख सकते हो, इस मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरह से देख सकते हो कि आपने ई का फर्स्ट रो पिक किया, ई का फर्स्ट रो पिक किया एंड दिस कंप्लीट मैट्रिक्स ए। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड दिस मैट्रिक्स ए, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि हर एक रो, और ये ई क्या बताएगा कि हर एक रो का कितना कंपोनेंट लेना, एंड दिस प्रोडक्ट विल गिव यू द फर्स्ट रो एंड अगेन सेकेंड रो पिक करो ई का एंड कंप्लीट दिस मैट्रिक्स ए, दैट विल गिव यू सेकेंड रो। तो ये जीरो वाला रो ई के कौन से रो से आ रहा है, दैट विल बी द वेक्टर इन द लेफ्ट नल स्पेस। और ऐसा भी तो हो सकता है एक रो नहीं दो रो, जिसमें भी आपका रैंक नहीं, सॉरी जिसमें भी आपका पिवट नहीं है रो में, वो सारे रो जीरो होने वाले हैं। और ये जीरो रो कैसे आएगा, दैट इन्फॉर्मेशन इज इन दिस मैट्रिक्स ई। ई का कौन सा रो हम लें ताकि वो रोज ऑफ ए पे एक्ट करे और प्रोड्यूस करे दिस जीरो रो को, राइट। so how many rows, so that will again depend on the number of zeros you are getting। so यहाँ पे जब आपने एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया तो ये जो रो होंगे जो जिसमें पिवट नहीं होगा, so how many रो, कितने वैसे रोज होंगे, तो m माइनस आर रोज होंगे वैसे। so that is why the dimension of this matrix will be m minus r, right। so this is how you can see this one, राइट, दिस इक्वेशन, राइट। बट इतना झमेला करने का जरूरत नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है कि सो बेसिकली क्या चीज़ ट्रेस आउट कर रहे हैं। अगर मुझे इस लेफ्ट नल स्पेस को फाइंड करना है तो हम लोग ट्रेस आउट ये कर रहे हैं कि एलिमिनेशन के दौरान ही, मतलब थ्रू आउट द एलिमिनेशन हम लोग ये ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कौन से टाइम में मुझे पूरा रो जीरो मिल गया और कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे पूरा रो जीरो दे रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसको फाइंड करना है, लेफ्ट नल स्पेस का कोई भी वेक्टर को फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैट्रिक्स ले लेंगे और जो भी रोज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसको ट्रेस आउट करेंगे, जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। और एट द एंड पता चल जाएगा आपको। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो भी कि इसको कैसे फाइंड करना। इतना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा प्रोसेस, जब अभी जितना सारे मैंने बोला प्रोसेस, तो आपको लगेगा कि कैसे इसको फाइंड करेंगे या क्लियर नहीं है। तो अभी आई विल टेक द एग्जांपल, यू विल हैव द प्रोसेस एंड यू नो हाउ टू फाइंड द नल स्पेस ऑफ और लेफ्ट नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, राइट। ओके, नाउ वी कैन टेक दिस एज एग्जांपल। लेट मी टेक एन एग्जांपल और मुझे पूछने दो आपके इसमें जो है आपका, आप एज्यूम करो कि आपने ऑलरेडी एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया एंड यू हैव दिस मैट्रिक्स 1 0 0 0। तो इसमें आपको सारे स्पेसेस जो हैं, कॉलम स्पेस, वेक्टर कॉलम स्पेस, रो स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस, सारे का डायमेंशन बताना है, राइट। सो और आपने एलिमिनेशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, सो यू हैव दिस 2 पिवट, राइट। 2 से पिवट आपको नहीं मिल पाएगा, पहला पिवट ये है, दूसरा पिवट ये है, राइट। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस कॉलम स्पेस, सो डायमेंशन वुड बी 2। सो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस विल बी 2। और ये बताओ कि ये जो कॉलम स्पेस है दैट विल बी ऑल्सो द सबसेट। सबसेट का हम लोग किस तरह से करें, मतलब कि कॉलम स्पेस विल बी सब स्पेस और यू कैन से कॉलम स्पेस विल बी द सबसेट ऑफ व्हाट डायमेंशन। हर एक कॉलम वेक्टर देखो ना आप कहाँ से पिक कर रहे हो, 3 डायमेंशनल स्पेस से। तो कॉलम स्पेस तो इन दोनों से वेक्टर के फॉर्मेशन से बनेगा। अगर आप पूरा भी कॉलम ले लो तो वो कॉलम स्पेस दे देगा, बट आई वांट दीज 2 वेक्टर आर इनफ टू डिस्क्राइब द कंप्लीट कॉलम स्पेस। और जो कॉलम स्पेस होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ दिस आर क्यूब वेक्टर स्पेस। क्यों? क्योंकि हर एक कॉलम में हर एक कॉलम वेक्टर जो कितने डायमेंशनल स्पेस से लिया गया, 3 डायमेंशनल स्पेस से। तो कॉलम स्पेस इज रिसाइडिंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस, बट कॉलम स्पेस विल डिस्क्राइब द प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस बिकॉज वी हैव ओनली दिस 2 वेक्टर। सो बेसिस में भी कॉलम स्पेस का बेसिस में भी यही दोनों वेक्टर आएगा, राइट। मतलब ए का जो भी क्रॉसपॉन्डिंग, तो इस केस में यही दोनों वेक्टर आएगा। सो what will be the dimension of this column space? The dimension of the column space will be 2। so अगर इस एग्जाम्पल को लो तो यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, राइट। साइज क्या है मैट्रिक्स का, आपके पास कितने रोज है, 3 रोज है एंड 5 कॉलम है, राइट। हाँ, नाउ कमिंग टू दिस डायमेंशन ऑफ दिस रो स्पेस।
सो रो स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? और सबसे पहली बात तो ये रो स्पेस किसका सबसेट होगा? सो रो कोई भी वेक्टर को आप पिक करो, और यानी तो अगर आप ए ट्रांसपोज के टर्म्स में देखना चाहते हो तो पहले ट्रांसपोज ले लो, सो 1 0 0 0 एंड 0 1 2 3 4। सो सिंपली आप इस वेक्टर्स को देख रहे हो। सो ऑल दिस वेक्टर है 1 2 3 4 5 कंपोनेंट। दैट मीन्स कि रो स्पेस का कोई भी वेक्टर होगा वो 5 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया है। बट व्हाट विल बी द रो स्पेस? सो रो स्पेस विल बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज टू वेक्टर्स, राइट? सो रो स्पेस जो होगा दैट विल बी द सब स्पेस और द सबसेट ऑफ दिस 5 डायमेंशनल स्पेस। एंड what will be the dimension of row space? So row space is residing in 5 dimensional space, क्योंकि हर एक वेक्टर इसका 5 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया है। बट what will be the dimension of the row space? डायमेंशन क्या होगा रो स्पेस का? 2 होगा, बिकॉज इन द बेसिस सेट you have only 2 vectors, right? And these 2 vectors are going to span the row space, right? So what will be the dimension in this case? The dimension of row space is 2, right? Now coming to this dimension of the null space. So dimension of the null space, dimension इस केस में क्या होगा? So it is obvious कि मेरे पास कितना बच गया फ्री कॉलम, that is 3. So dimension would be 3. Dimension of the null space would be 3. और ये null space कौन से वेक्टर स्पेस में रिसाइड कर रहा है और कौन से वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, राइट? सो दैट इज द सब। सो नल स्पेस आपको क्या बताता है? ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि हाउ टू कंबाइंस द कॉलम्स ऑफ एक्स। क्या बोलता है कि कैसे ए के कॉलम्स को लेना है, कितना लेना है। दैट मीन्स कि कॉलम पे डिपेंडेंसी है इसका, मतलब कि कॉलम जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा वही उसका नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट होगा एक्स का, राइट? बिकॉज x times 1 plus x2 times this plus x3 times this plus x4 times this plus x5 times this. So all those vectors that is in the null space have the 5 components in it. That means कि null space का कोई भी vector will have the 5 components. That means कि null space is residing in the 5 dimensional space. So null space is a subset of null space of matrix A is a subset of this 5 dimensional space, right? And what about the null space of this A transpose? तो सबसे पहले तो डायमेंशन क्या होगा? अगेन 2 रो में आपका, तो एक रो ये वाला जो है देखो 0 रो है, मतलब कि एक कोई वेक्टर होगा, अगर उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कॉलम्स रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, एंड दिस इज व्हाट दिस प्रोड्यूसिंग दिस वेक्टर जीरोस, राइट? सो ऑब्वियसली अगर आप देखो तो यहाँ से टोटल कितने इसके पास रोज है? 3, एंड जो पिवट वाले कॉलम है वो 1 है, तो 3 - 1 इज 2. सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस लेफ्ट नल स्पेस? दैट इज गोइंग टू बी द 3 - 2 इज 1, राइट? अब नाउ ये कमिंग टू कि ये इसका ये लेफ्ट नल स्पेस जो होगा विल बी द सब स्पेस ऑफ। सो देखो ये अगर लिख रहे हैं हम वाई ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 0, सो ये वाई क्या बताएगा? वाई के पास विल हैव द हाउ मेनी कंपोनेंट्स? दैट डिपेंड्स ऑन द रोज ऑफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ द ए। बिकॉज ये क्या बताता है, ये इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बताता है कि वाई के पास इंफॉर्मेशन है कि हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ वेक्टर्स का ही ना कॉम्बिनेशन लेंगे। तो वाई विल हैव द हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स? 3 कॉम्पोनेंट्स, राइट? सो दिस रो स्पेस इज इन द is residing in the 3-dimensional space, right? But row space this left null space is residing in the 3-dimensional space, right? Okay, so that we have found all the dimension of the subspaces for this particular matrix, right? So now coming to the summary. So if you look at this picture, so this picture tells you the complete thing that we have covered in last 2 videos, right?
सो एक एक करके देखते हैं। ये क्या है आपका, ये मान लो कि कॉलम स्पेस है आपका। सो कॉलम स्पेस इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए टाइम्स दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस वेक्टर। सो दिस इज अ कॉलम स्पेस, सो दिस होल स्पेस इज अ कॉलम स्पेस। और ये स्क्वायर लिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी शेप में ले लो, राइट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द शेप इन द n डायमेंशनल स्पेस, राइट। सो दिस इज अ कॉलम स्पेस, जस्ट टू हैव ए पिक्चर कि हाँ ये कॉलम स्पेस है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे रो स्पेस बताना है, सो रो स्पेस को आप लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट, और यू कैन से linear combination of the row columns of matrix A transpose. So columns of the linear combination of the columns of matrix of A transpose is equal to linear combination of the rows of matrix A, right? So फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पे, राइट। तो आप पूरे रो स्पेस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द A ट्रांसपोज, राइट। नाउ दिस इज द कॉलम स्पेस एंड दिस इज द रो स्पेस। और ये कॉलम स्पेस जो है दैट विल बी अ सबसेट ऑफ व्हाट स्पेस, दैट विल बी अ सब स्पेस और सबसेट ऑफ व्हाट स्पेस। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन ए कॉलम हैव। सो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स किस पे डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर column space is residing or is a subset of this r to the power m vector space. With the similar logic, what will where this row space is residing, so row space will have the हर एक किसी भी वेक्टर को आप रो स्पेस से पिक कर लो, that will have the how many components, that depends on the number of columns, right? So that means कि row space will be residing in r to the power n dimensional space. तो ये क्लियर हो गया कॉलम स्पेस क्या है, रो स्पेस क्या है, राइट। नाउ कमिंग टू दिस नल स्पेस, राइट। सो ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन क्यों है, ये भी अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू व्हाट आर ऑल दीज स्पेसेस। सो नल स्पेस क्या है, सो मुझे वो सारे वेक्टर एक्स को फाइंड करना है फॉर विच द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज प्रोड्यूसिंग दिस वेक्टर 0, राइट। सिमिलरली लेफ्ट नल स्पेस क्या है, मुझे रोज ऑफ मैट्रिक्स ए या कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के लीनियर कॉम्बिनेशन को देखना है, और व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोड्यूसिंग दिस 0, राइट। सो हियर आई वांट ऑल दिस वाई फॉर दिस ए ट्रांसपोज, हियर आई वांट ऑल दिस एक्स फॉर दिस ए, राइट। सो दैट फॉर जहाँ पे ये एक्स, जो भी सारे एक्स होंगे दैट विल डिस्क्राइब द कंप्लीट नल स्पेस, एंड जो भी ये वाई होगा दैट विल डिस्क्राइब द कंप्लीट लेफ्ट नल स्पेस, राइट। और ये लेफ्ट नल स्पेस जो होगा वो किस डायमेंशनल स्पेस में होगा और किसका सबसेट होगा। सो लेफ्ट नल स्पेस विल टेल यू दैट हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन सच ए वे कि मुझे 0 मिलना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, राइट। तो रोज दैट मीन्स कि आई नीड टू हैव द m components in the left, जो भी वेक्टर हम पिक करेंगे लेफ्ट नल स्पेस से दैट विल हैव द m component, राइट। एंड थोड़ा इस पर सोचो आप जो भी, क्योंकि फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, अगर मैं बोलूँगा भी तो सेम चीज़ रिपीट करूँगा, क्योंकि यही चीज़ हमने देखा था यहाँ पे, राइट। एंड वेयर दिस नल स्पेस विल बी रिसाइडिंग इन व्हाट वेक्टर स्पेस, सो नल स्पेस दैट मीन्स कि x जो है वो क्या बताता है कि हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो कॉलम्स के बारे में बात करें दैट मीन्स कि अगर मेरे पास n कॉलम्स होंगे दैट मीन्स कि n नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स होंगे दिस वेक्टर x, राइट। सो कॉलम स्पेस इज गोइंग टू डिसाइड और इज अ सबसेट ऑफ दिस r टू द पावर n। सो अब एक पिक्चर को देखो कि अब ये रो स्पेस और जो नल स्पेस है, रो स्पेस और नल स्पेस जो है both are in r to the power n vector space, and column space and this left null space both are in r to the power m vector space. So both are in 2 vector space, but here this column space,
row space, and this null space is in the r to the power n vector space. Here this column space and this left null space is in the r to the power m vector space m. Right, now coming to this, you see here we have this this perpendicular, right, orthogonal. So these, so anyhow we are going to look, or in the orthogonality chapter we will read that orthogonality of 4 subspaces, right. So बस आपको मुझे एक थोड़ा सा आइडिया देने दो कि आप कोई भी वेक्टर पिक करो रो स्पेस से, कोई भी वेक्टर पिक करो रो स्पेस से, मतलब कि कोई भी रो को पिक कर लो, दैट विल बी इन द रो स्पेस। और ये क्या है, अगर ये a है, ये x है और ये 0 है, देन अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, दैट मीन्स कि कोई भी वेक्टर पिक करो रो से, रो स्पेस से, और कोई भी वेक्टर पिक करो नल स्पेस से। सो कोई सा भी वेक्टर इससे पिक करो और कोई सा भी वेक्टर स्पेस से पिक करो, सो दोज वेक्टर आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर। So that is why these two spaces are orthogonal, right? So देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है 90 डिग्री। So this is what this picture is showing. Now coming to this picture, आप इसको कैसे देखोगे, इसको इस तरह से देखो, ये आपका कॉलम स्पेस एंड दिस लेफ्ट नल स्पेस, राइट। सो इस मैट्रिक्स, इस यानी इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वाई ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 0, राइट। सो कोई भी वेक्टर वाई लो, दैट विल बी इन द लेफ्ट नल स्पेस, एंड पूरा मैट्रिक्स ए ले लो, या कोई आप क्या करो, किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे इसको ये से ऐसे करके, मतलब कि फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, एंड दैट विल गिव यू द नहीं ऐसे नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो कि ए ट्रांसपोज वाई है ना, सो ए ट्रांसपोज वाई मतलब कि जितने भी यहाँ पे कॉलम्स होंगे ए ट्रांसपोज का, दैट विल बी द रो ऑफ दिस ए, राइट। सो कॉलम टाइम्स दिस y, so y is in the left null space, right। so देखो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, राइट, सो यू हैव दिस फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो, राइट। सो अगर जब इसका आप ट्रांसपोज लोगे A ट्रांसपोज, देन यू विल हैव दिस ईयर R1 एंड दिस R2 दिस R3, राइट। अब A ट्रांसपोज Y करोगे, राइट, सो व्हाट यू विल डू, जो भी आपके, सो अब देखो ए ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज वाई करोगे, तो यहाँ पे जितने भी ए ट्रांसपोज का मतलब ये जो कॉलम होगा, राइट, उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे इस वाई से, दैट इज इन द लेफ्ट नल स्पेस, कोई भी वेक्टर दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट नल स्पेस, उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, सो यू विल गेट द 0। सो दैट इज वाई वी हैव केप्ट दीज टू सब स्पेसेस, सो दीज टू सब स्पेसेस आर ऑर्थोगोनल, राइट। सो इसको आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो और इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो, राइट। सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो दिस पिक्चर, complete picture describes the what we have learned so far in the last 2 videos, right। So yeah, let's stop this video. So in next video I will take an example where I will show you that I will take example and I will find the basis for all these subspaces, and after that finding the basis I will find the dimension for all these subspaces. That is all in this video. Thank you.